First of all, let's start with thrombocytopenia. The simple definition of thrombocytopenia is if the platelet count is less than 150, this is known as thrombocytopenia. There are various mechanisms that can lead to decrease in platelet count or that can lead to thrombocytopenia. सॉरी It is डॉक्टर फातिमा आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही. oh sorry. So let's start with thrombocytopenia. The main definition of thrombocytopenia is if the platelet count is less than 150. There are various mechanisms that lead to decrease in platelet count. The first one is decreased production. The decreased production can be due to bone marrow failure. It can be related to certain drugs. It can be because of alcohol. It can be associated with B12 folate deficiency. It is associated with certain infections like HIV, hepatitis C, Epstein-Barr virus. There are various infections that can lead to decrease in platelet production and malignancy. These are the various factors that can lead to decrease in a platelet production, eventually causing thrombocytopenia. The other mechanism is increased destruction or consumption. This includes ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura, TTP, thrombotic thrombocytopenic purpura, hemolytic uremic syndrome, DIC, and autoimmune conditions, SLE, certain drugs, and heparin-induced thrombocytopenia. All of these diseases or conditions can lead to increased destruction or consumption of platelets, eventually causing thrombocytopenia. Then we have sequestration. Sequestration, which means this splenic macrophages attack the platelets and causes a destruction of the platelets. The patient can present to you with splenomegaly. Another factor or another mechanism that can lead to thrombocytopenia is dilutional, which means that massive transfusion can also lead to thrombocytopenia or decrease in a platelet count. So the classic AMC buzzwords that you need to remember. If you have a patient, let's suppose if they mention only thrombocytopenia, or isolated thrombocytopenia with mucocutaneous bleeding, but normal PT and APTT, along with large platelets. There is thrombocytopenia, the cell count is low, but the size of the platelets is large. What will be your diagnosis? Any guesses? If they have mentioned isolated thrombocytopenia with mucocutaneous bleed, but normal PT-APTT and large size platelets, what is your diagnosis? वो कुछ पोस्ट क्लिनेक्टमी होगा या
idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP. Okay. If you have a patient with thrombocytopenia along with renal or neurological signs, plus there are schistocytes, on smear, normal PT-APTT, increase LDH, microangiopathic hemolytic anemia, and increase indirect bilirubin. What will be your diagnosis? टीटी भी होगा ये? Yes. Because यहाँ पे मैंने renal और neurological signs दोनों को mention किया है, so it could be TTP and hemolytic or hemolytic uremic syndrome. We will differentiate between the two conditions later on. अगर आपके पास patient है with prolonged PT, APTT, but decrease fibrinogen, increase D-diamers, schistocytes, bleeding, plus thrombosis. What is your diagnosis? DIC. Good. This is a case of DIC. If you have a patient presenting to you with a decrease in a platelet count 5 to 10 days after taking heparin, thrombosis, risk is higher than bleeding. Along with this, there is a positive PF4 heparin antibodies. What is your diagnosis? पता नहीं, इसका मुझे आइडिया नहीं हो रहा. This is heparin induced thrombocytopenia type Hit. 4. Sorry, type 2. Okay. HIT juice. Okay. So these are the main clues that you can keep in your mind. You can note down on the make some notes ताकि जब भी आप दोबारा इन उसको आपके जेब में clues होंगे तो आपके लिए डायग्नोसिस बनाना आसान हो जाएगा. अच्छा, अब आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का केस आ गया. आपने किस तरह उस पेशेंट, लेट्स सपोज यू आर अ डॉक्टर और आपके पास एक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का केस आ गया. अब आपने उसको कैसे लेके चलना है? सबसे पहले आप ये कंफर्म करेंगे कि ये वाकई ही थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है. उसके लिए आप फुल ब्लड काउंट करा रहे हैं. फिर आप देखेंगे कि कोई रेड फ्लैग्स है. जैसे रेड फ्लैग्स में क्या हो सकता है? इट कुड बी एक्टिव ब्लीडिंग, इट कुड बी एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, it could be acute kidney injury, it could be hematuria, it could be sepsis, pregnancy, particularly pregnancy with hypertension, HELLP syndrome, or recent heparin use history. If any of these clues are mentioned in the scenario, they were considered as a red flag. Then you do the blood smear, और उसमें आप क्या दो चीजें particularly नोट करते हैं कि क्या इसमें शिस्टोसाइट्स है या क्या आपको जो
प्लेटलेट्स मिल रहे हैं उनका साइज लार्ज है, like you look for two main things, schistocytes and giant platelets. बाकी एड ऑन में आप कोएगुलेशन प्रोफाइल करवा सकते हैं, आप फिब्रिनोजेन मेजर करेंगे, डी डायमर्स देखेंगे, एलएफटीज करवाएंगे, और इसके अलावा आप वायरल सीरोलॉजी भी करवा लेते हैं, बिकॉज हमने देखा कि देयर आर सर्टेन इन्फेक्शंस लाइक एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन, एचआईवी, दे कैन आल्सो लीड टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. क्लियर? जी. जी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आपने डेफिनेशन देख ली, आपने कॉजेस देख लिए, आपने उनके पर्टिकुलर हिंट्स देख लिए कि कैसे आपने डायग्नोसिस में आने पे हम देखा कि आपका पेशेंट आ गया, आपने कैसे उसको प्रोसीड करना है. यू स्टार्ट विद फुल ब्लड काउंट, look for the red flags, do the smear, then these are the add-on labs like coagulation profile, fibrinogen, D-dimers, LFTs, viral serology. अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को हम इटियोलॉजी के हिसाब से देखेंगे. पहले हम मैनेजमेंट देखेंगे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की. सो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और आईटीपी का जो पेशेंट है, क्योंकि इसमें आपके पास सबसे पहले तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है. इसमें आपके पास आइसोलेटेड प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा, नॉर्मल पीटी एपीटीटी होगा, साथ में स्मेयर पे आपको जाइंट प्लेटलेट्स मिल सकते हैं. इस पेशेंट को आप ट्रीट करेंगे अगर प्लेटलेट लेस देन 30 है या पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है. अगर ये नहीं है तो फिर आप सिंपली ऑब्जर्व करेंगे. तो अगर दो कंडीशंस में आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, अगर प्लेटलेट काउंट लेस देन 30 है या पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, अदरवाइज यू विल ऑब्जर्व द पेशेंट. और अगर अब आपने ट्रीटमेंट करना है तो आप कैसे ट्रीट करेंगे? द फर्स्ट लाइन इज प्रेडनिसोलोन 1 milligram per kg per day, or you can give dexamethasone 40 milligram per day for 4 days. Clear? जी. अगर पेशेंट, ये तो है फर्स्ट लाइन, बट अगर आपका जो पेशेंट है इमरजेंसी में है, लाइफ थ्रेटनिंग है, नीड रैपिड राइज इन अ प्लेटलेट्स, ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम पे, इन पेशेंट्स में आप IVIG 1 ग्राम पर केजी पर डे देते हैं. यू गिव इट फॉर 1 to 2 days. साथ में आप प्लेटलेट्स ऑप्शनल होते हैं, प्लेटलेट्स दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं. यूजुअली आप प्लेटलेट्स साथ में तब देते हैं अगर बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है. So this is your first line management. The second line is rituximab. रिटुक्सिमैब में आप सॉरी इसमें आप रिटुक्सिमैब देते हैं या फिर आप TPO-R एगोनिस्ट देते हैं. और अगर रिफ्रैक्टरी केस है, क्रॉनिक रिफ्रैक्टरी केस है, फिर आप स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं. So these are the management guidelines for ITP or immune thrombocytopenia. Then we have thrombotic thrombocytopenic purpura. Thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP. TTP में आपके पास डायग्नोसिस या एग्जाम क्लू क्या होता है? आप डायग्नोसिस कैसे बनाते हो? You're gonna have a pentate of
microangiopathic hemolytic anemia with thrombocytopenia, neurological signs plus renal dysfunction plus fever. ये नहीं होता कि पांचों के पांचों पॉइंट्स फुल होना फिल डॉक्टर फातिमा एक दफा ये रिपीट करेंगे पांचों पॉइंट्स? the pentate or the classic exam clue for TTP are microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia, neurological signs, renal dysfunction with fever. अब ये 5 साइंस हैं, जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में ये पांचों साइंस हो, और आपने भी 5 के 5 साइंस के होने का वेट नहीं करना होता। जैसे ही आपको एक दो साइंस भी मिलते हैं, यू स्टार्ट ट्रीटिंग द पेशेंट। डू नॉट वेट फॉर ऑल द साइंस। इसमें आप इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या देते हैं? You go for urgent plasma exchange, हाई डोज स्टीरॉइड्स देते हैं, with or without Cefaleximab. एक चीज आपने याद रखनी है, टीटीपी के केस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन is contraindicated until unless बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो अगर आपके पास प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का ऑप्शन है, तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे कैची लग रहा होता है, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि टीटीपी के केस में आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड until unless बहुत बहुत लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड हो रहा हो। क्लियर? जी। जी। नाउ यू कैन आस्क कि आप इसमें क्यों नहीं करते? क्योंकि टीटीपी में भी और हेparin induced thrombocytopenia दोनों में the main these are sorry, these two conditions are not due to lack of platelet production. इन दोनों conditions में platelet production normal होती है। It's due to ongoing platelet activation and microthrombus formation. यहाँ पे problem basically ये होती है, जैसे टीटीपी की एग्जांपल है, यहाँ पे प्लेटलेट प्रोडक्शन का इशू नहीं है, प्लेटलेट बन नॉर्मल रहे होते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो प्लेटलेट्स बन रहे हैं वापस में क्लम्प करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो जो माइक्रोवास्कुलर प्लेटलेट क्लम्प्स होते हैं उनकी वजह से एक्चुअली ऑर्गन डैमेज हो रहा है। अगर आपने इन पेशेंट्स को उल्टा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना स्टार्ट कर दिए, तो पहले ही क्लम्प कर रहे थे, अब और ज्यादा प्लेटलेट्स क्लम्प करना शुरू हो जाएंगे और पेशेंट की कंडीशन वर्स हो जाएंगे। So adding or transfusing platelets in these patients simply fuels more clot formation and can worsen the ischemia. Clear? जी। जी। On the other hand, जो heparin induced thrombocytopenia है, उसमें भी प्लेटलेट प्रोडक्शन का इशू नहीं होता, उसमें भी एंटीबॉडीज बन रही होती हैं अगेंस्ट द प्लेटलेट्स। अब आपने और प्लेटलेट्स दे दिए तो और एंटीबॉडीज बनेंगी, because you are now providing more substrate and that will increase the thrombosis risk. इसलिए इन दो particular conditions में even though there is thrombocytopenia, but आप platelets को transfuse नहीं करते। The next condition we have is hemolytic uremic syndrome. Hemolytic uremic syndrome usually इसमें आपको कैसा क्लू मिल जाएगा, जैसे पोस्ट डायरियल पेशेंट है, पोस्ट डायरियल शीगा टॉक्सिन, और एक और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ये बच्चों में कॉमन है। Two main clues you can two main points that will help you to differentiate between TTP and HUS. HUS TTP बड़ों में होता है यूजुअली, HUS जो है ये बच्चों में बहुत कॉमन है, और इसमें जो है आपके पास बाकी आपको मिलते जुलते सिम्टम्स मिल सकते हैं, लाइक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, देयर कुड बी अ फीवर,
usually patient is post diarrhea, patient has a history of diarrhea. और जो hemolytic uremic syndrome वाला पेशेंट होता है, इसमें आप बेसिकली ट्रीटमेंट में सपोर्टिव केयर देते हैं, लाइक फ्लूइड्स। और अगर किडनी फेलियर में पेशेंट जा रहा है तो फिर आप डायलिसिस कर सकते हैं। वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर कि इन पेशेंट्स में आपने एंटीबायोटिक्स और एंटी मोटिलिटी ड्रग्स को अवॉइड करना होता है। क्लियर? जी फिर उसके बाद हमारे पास आ जी जाएगा DIC, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन। DIC में सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रीट द कॉज। सेप्सिस है, ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी है, कैटास्ट्रोफ है, ट्रॉमा है, व्हाटएवर इज द कॉज, ट्रीट द कॉज। सेकंड पॉइंट क्या होता है, ट्रांसफ्यूज। ट्रांसफ्यूज इज ब्लीडिंग और बिफोर द प्रोसीजर। इसमें क्या क्या आप ट्रांसफ्यूजन, क्या क्या ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, FFP और क्रायो प्रेसिपिटेट। तो FFP इज द फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा आप क्रायो प्रेसिपिटेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर फिब्रिनोजेन 1.5 ग्राम्स पर लीटर से कम है। इसमें आप प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। और आपका एम क्या होता है, यूजली आप जब प्लेटलेट्स देते हैं तो आपका गोल होता है कि आप 50 से अबव रखें प्लेटलेट्स को। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली कोई न्यूरो सर्जरी कर रहे हैं तो उसमें जब आप प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसमें आपका गोल होता है कि आप प्लेटलेट काउंट को 100 से ऊपर रखें। क्लियर? जी फिर आपके पास आता है हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये दो टाइप्स होती है इसकी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती, वो खुद ब खुद रिकवर हो जाती है। मेजरली आप टाइप 2 को डिस्कस करते हैं, तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें आप इसको आप ट्रीट कैसे करते हैं, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट की हेपरिन की हिस्ट्री होती है 4 से 5 दिन के बाद। अब वो आपके पास ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करता है, सॉरी थ्रोम्बोसिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है। अब आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे, यू शुड स्टॉप और heparin immediately and you shift the patient or you start some non-heparin anticoagulant, जिसमें आपके पास क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, अर्गेट्रोबैन एंड फोंडा पेरिनॉक्स। के अलावा इसमें एक ऑप्शन आपके पास विवा लिरोडिन भी है।
हेलो। जी। सॉरी, बीच में शायद सिग्नल का इशू हो गया था। आपने कहाँ तक सुना है? अब लोगों ने कहाँ तक कवर किया है? जी डॉक्टर फातिमा, आप ट्रीटमेंट का बता रही थी। हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की ट्रीटमेंट का। जी जी। अच्छा, हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 2 में सबसे पहले तो यू हैव टू स्टॉप ऑल द हेपरिन इमीडिएटली। यू हैव टू स्टार्ट अ नॉन हेपरिन एंटीकोएगुलेंट। आपके पास ऑप्शंस में अर्गेट्रोवेन, फोंडापेरिनॉक्स और बिवालिरुडिन आता है। इसके अलावा यू कैन ऑर्डर PF4 हेपरिन एंटीबॉडीज एलाइजा। इस पेशेंट में भी आप प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि जब हम पेशेंट की हेपरिन को स्टॉप कर रहे हैं तो हम उसको फौरन से वॉरफरिन पे शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। यू विल डिले द वॉरफरिन अंटिल द प्लेटलेट काउंट इज अबव 150। जब एक दफा आप 150 वाला थ्रेशोल्ड अचीव कर लेते हैं फिर आप पेशेंट को वॉरफरिन पे डाल सकते हैं। क्लियर? इसका क्या रीजन है डॉक्टर फातिमा कि हम ये करते हैं? आप लोगों को पीछे बहुत आवाज तो नहीं आ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, इसमें ना बेसिकली द रीजन इज ऑलमोस्ट द सेम, क्योंकि हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में बेसिकली पेशेंट एक प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट में होता है। प्रोथ्रोम्बोटिक और हाइपरकोएगुलेबल स्टेट होती है इवन दो द प्लेटलेट काउंट इज लो। अगर आपने इस पेशेंट में वॉरफरिन स्टार्ट करवा दी जस्ट टू अर्ली कि अभी प्लेटलेट काउंट 150 तक भी नहीं किया और आपने वॉरफरिन स्टार्ट करा दी है। वॉरफरिन क्या करती है? वॉरफरिन विल, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इट विल लोअर प्रोटीन सी फर्स्ट। बॉडी आपकी ऑलरेडी एक हाइपरकोएगुलेबल स्टेट में है और प्लेटलेट काउंट को ऑप्टिमाइज किए बगैर ही आपने वॉरफरिन दे दिया है, तो थोड़ा बहुत जो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट प्रोटीन सी की वजह से आ भी रहा था वो भी आना बंद हो जाएगा। So if you start warfarin quite early, while the platelets are still low, below 150, it lowers the protein C level, which is a natural anticoagulant, before fully reducing the procoagulant factor. और ये उल्टा मजीद पेशेंट में एक टेम्परेरी हाइपरकोएगुलेबल स्टेट को ट्रिगर कर देगी। आपको पता है कि वॉरफिन की वजह से वैसे ही वॉरफिन इंड्यूस स्किन नेक्रोसिस या लिम्फ गैंग्रीन होने का रिस्क होता है और हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाले पेशेंट्स में वो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? जी, तो इसका मतलब है कि पहले हम प्लेटलेट्स को 150 तक लेके जाएंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट वार्फरिन। यस, पहले आप प्लेटलेट्स को ऑप्टिमाइज करेंगे अप टू 150 बाय गिविंग द अदर ऑप्शंस और उसके बाद इफ नीडेड तो आप उसको वॉरफिन पे डाल सकते हैं। उसके बाद हमने कहा था कि कुछ ऐसी ड्रग्स भी होती हैं जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करती हैं। द कॉमन ड्रग्स आर क्यूनिन, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाजोल या को ट्राइमाजोल के नाम से जो आती है, वेलप्रोएट, लेंजोलिड, कीमोथेरेपी ड्रग्स। इसके अलावा अल्कोहल। देयर आर सर्टेन हर्बल रेमेडीज, वो भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कर सकती हैं। इन सब का ट्रीटमेंट क्या है? यू हैव टू स्टॉप द ड्रग। एक और कॉमन कॉज होती है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की। लेट्स सपोज अगर आपका पेशेंट बोन मैरो फेलियर में चला गया, अगर बोन मैरो फेलियर में पेशेंट चला गया है इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया है तो फिर तो उसमें आपको पैनसाइटोपेनिया मिलेगा ना।
सारे सेल का काउंट जो है, सारी सेल लाइंस जो है वो डिक्रीज होंगी, एबनॉर्मल फिल्म मिलेगी। तो इन पेशेंट्स के लिए फिर आपने हिमाटोलॉजी रेफरल करना होता है। यू हैव टू रेफर द पेशेंट टू द हिमाटोलॉजी डिपार्टमेंट। साथ में आप बोन मैरो बायोप्सी करते। क्लियर? जी Now let's talk about few things that are particularly asked on AMC exam. कि प्लेटलेट, हमने ये तो देख लिया कि कब कब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज नहीं करना। Now let's talk about platelet transfusion threshold. अगर प्लेटलेट काउंट 10 से कम है, चाहे पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो, इस पेशेंट में भी आप ट्रांसफ्यूजन करेंगे। Even if the patient is asymptomatic, but if platelet count is less than 10, you have to transfuse, especially ये इन पेशेंट्स होते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट 20 से कम है और साथ में कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, जैसे फीवर है, सेप्सिस है, या माइनर ब्लीड हो रहा है पेशेंट को, फिर आप उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे। अगर प्लेटलेट काउंट 50 से कम है और आपने कोई प्रोसीजर करना है या पेशेंट को कोई एक्टिव ब्लीडिंग है, तो फिर आप ट्रांसफ्यूज कर देंगे। अगर प्लेटलेट काउंट 100 से कम है और आपने न्यूरो सर्जरी करनी है या ऑक्यूलर सर्जरी करनी है, फिर आप ट्रांसफ्यूज कर देंगे। और ये हमें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि किन में आप ट्रांसफ्यूज नहीं करते, तो पर्टिकुलरली टीटीपी और एचआईटी वाले पेशेंट्स में आप ट्रांसफ्यूज नहीं करते अनटिल अनलेस लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड हो। क्लियर? जी। अच्छा, अब एक और तरह से हम इसको देखेंगे कि अगर आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पेशेंट है, when to anticoagulate in a thrombocytopenia case. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के पेशेंट्स को कब आपने एंटी कोएगुलेंट देना है या कब इनको एंटीकोएगुलेट करना है? अगर प्लेटलेट काउंट 50 या 50 से ज्यादा है, तो इन पेशेंट्स में जनरली थेराप्यूटिक एंटीकोएगुलेशन सेफ होती है। बिटवीन 25 to 50 आप कर सकते हैं, अगर बट उसमें आपको डोज रिड्यूस करनी पड़ती है और ये ध्यान रखना पड़ता है कि ब्लीडिंग का रिस्क हाई ना हो। अगर हाई ब्लीडिंग रिस्क है देन यू हैव टू होल्ड द एंटीकोएगुलेंट। अगर ब्लीडिंग का रिस्क बहुत हाई नहीं है तो आप डोज रिडक्शन के बाद 25 to 50 के दरमियान भी एंटीकोएगुलेंट दे सकते हैं। अगर आपका पेशेंट है उसका प्लेटलेट काउंट 25 से भी ड्रॉप कर गया है, इसमें फिर आपने एंटीकोएगुलेंट को अवॉइड करना है। जनरली आप अवॉइड करते हैं एक्सेप्ट कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग या लिम्फ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसिस हो गया है जिसमें आपको ट्रांसफ्यूजन करनी ही पड़ी है, तो उसमें फिर आप ट्रांसफ्यूजन के साथ एक तो स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। बट तो सिंपल वर्ड्स में अगर 25 से कम प्लेटलेट्स है तो अनटिल अनलेस कोई लाइफ थ्रेटनिंग या लिम्फ थ्रेटनिंग थ्रोम्बोसिस है, आप प्लेटलेट नहीं, आप एंटीकोएगुलेंट नहीं देते। और अगर आपको देना भी पड़ रहा है तो साथ में आप ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, ट्रांसफ्यूजन सपोर्ट करते हैं और साथ में आप स्पेशलिस्ट इनपुट या हेमेटोलॉजिकल इनपुट भी लेते हैं। क्लियर? जी जी। अच्छा, अब कुछ गाइडलाइंस में कुछ ड्रग डोजेस दी हुई है, वो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट ड्रग डोजेस है वो बता देती हूँ। एनॉक्साप्रिन,
इसको आप एज अ थेराप्यूटिक एंटीकोएगुलेंट भी यूज करते हैं। इसकी डोज होती है 1 मिलीग्राम पर केजी सबक्यूटेनियस बीडी। 1 मिलीग्राम यूजली आप देते हैं मैक्सिमम, या समटाइम्स आप 1.5 मिलीग्राम पर केजी सबक्यूटेनियस बीडी भी दे सकते हैं। सॉरी, 1 मिलीग्राम पर केजी सबक्यूटेनियस बीडी होती है, या 1.5 मिलीग्राम पर केजी सबक्यूटेनियस ओडी होगी। ये इसकी थेराप्यूटिक डोज है। अगर आप एनॉक्साप्रिन को प्रोफाइलेक्टिकली दे रहे हैं तो फिर इसकी डोज होगी 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस ओडी। अगर आपका पेशेंट जो है उसकी क्रेटिनिन क्लियरेंस 30 से कम है, तो इन पेशेंट्स में अगर आपने प्रोफाइलेक्टिक इनॉक्साप्रिन देनी है तो उसकी डोज 40 से कम होके 20 मिलीग्राम हो जाएगी। क्लियर? जी फिर रिवारोक्साबेन, इसकी डोज होती है 15 मिलीग्राम बीडी फॉर 21 डेज। उसके बाद 20 milligram OD. So initially you give 15 milligram VD for 21 days and then shift patient to 20 milligrams OD. ये किन पेशेंट्स को आप नहीं देते? रिवारोक्साबेन should be avoided in pregnancy. प्लस अगर आपके पास CKD का पेशेंट है तो उसमें भी आप अवॉइड करते हैं या डोज एडजस्ट करके देते हैं। एपिक्सावेन जो है इसकी डोज है 10 मिलीग्राम BD फॉर 7 days और 7 दिन के बाद आप इसको 5 मिलीग्राम बीडी पे शिफ्ट कर देते हैं। डेबिगेट्रेन की डोज है 150 मिलीग्राम बीडी अच्छा, डेबिगेट्रेन जो है ना वो 150 मिलीग्राम बीडी देते हैं, बट आफ्टर 5 to 10 days parenteral anticoagulant। तो डेबिगेट्रेन की डोज है आपके पास 150 मिलीग्राम बीडी, बट द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, क्योंकि ये आप वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट में यूजुअली दे रहे होते हैं, तो ये आप इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करते। आफ्टर द डायग्नोसिस ऑफ डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म पहले आप एक शॉर्ट कोर्स देते हैं पारेंटरल एंटीकोएगुलेंट का, लाइक एनॉक्साप्रिन और हेपरिन, और उसके 5 से 10 दिन के बाद आप उसको डेबिगेट्रेन पे शिफ्ट कर देते हैं, विच इज 150 मिलीग्राम बीडी। क्लियर? जी जी इसकी रीजन बट क्या है? ये सारी डोजेस याद करनी है? यस, ये सारी डोजेज अगर आप आज याद करेंगे ना तो कल की क्लास में हम वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का जो टॉपिक कवर करेंगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी मैनेजमेंट आती है, क्योंकि आज टॉपिक शॉर्ट था, इतना मुश्किल नहीं था आज आप ड्रग्स याद कर लें था। ओके क्योंकि कल वाला टॉपिक लंबा है तो उसमें फिर हमें ड्रग्स पे टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आपके पास ड्रग आती है एल्टीप्लेस। ये पर्टिकुलरली आप पल्मोनरी एम्बोलिज्म थ्रोम्बोलिसिस के लिए देते हैं, 100 मिलीग्राम IV ओवर 2 आवर्स। प्रेडनिसोलोन अभी हमने देख ली है, ITP के लिए देते हैं, डोज भी हमने देख ली है 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे। डेक्सामेथासोन भी हमने देख ली है, ये 40 मिलीग्राम
पर डे देते हैं फॉर 4 days। और अगर आपने IVIG देना है which is particularly given again for ITP, तो इसकी डोज होती है 1 ग्राम पर kg पर डे for 1 to 2 days। क्लियर? जी अब आप एक तो आपने इस टॉपिक को रिव्यू कर लेना, इसमें कुछ इतना खास नहीं था, बहुत बेसिक सी चीजें थी। मैनेजमेंट भी कोई इतनी वो नहीं है, सिंपल है। जो आपने मेन चीज पे फोकस करना है आज, ये ड्रग्स हैं, इनकी थेरेप्यूटिक डोसेज, ड्रग के नाम और डोसेज आपको पता होनी चाहिए, ताकि कल जब हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वाले टॉपिक कवर करें तो उसमें आपको पहले ही काफी चीजें आती। दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं। थैंक यू ऑल, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।